and welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. क्यों शाहरुख खान की पार्टी में अपना टिफिन लेकर पहुंचे थे आमिर खान? क्या लव रंजन की अपकमिंग फिल्म में अजय और रणबीर के बीच नहीं दिखेगा ब्रोमांस? रणबीर कपूर के बारे में क्या है आलिया की मॉम सोनी राजदान की राय? डैडी बोनी कपूर की किस फिल्म में दिखेंगी जानवी कपूर? आमिर खान ने किया खुलासा. आमिर को अपनी अपकमिंग फिल्म लाल सिंह चड्ढा के लिए कम करना होगा 20 किलो वेट. दरअसल आमिर रिसेंटली अपने डॉक्टर की बुक लॉन्च पर पहुंचे थे जो फैट लॉस पर बेस्ड है. इस मौके पर आमिर ने दंगल और गजनी जैसी मूवीज के लिए अपने बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पर भी बात की. So what I really did, a lot of people don't realize is that while I was putting on weight, I was building muscle. And I was also, my training was of a particular kind which was focusing on building the size of the muscle. So that process was lasted for a year and a half or so. And remember that I had already built muscle before that for Dhoom 3 and Peak. So my muscle was already there. I was not having to create the muscle, which is tough. So I was building on that, putting on weight and muscle, growing fatter and bigger. You could not see the muscle because it was covered by a thick layer of fat. So you just saw a fat man. But underneath that fat was muscle, which visually you could not see. And that was a thing that in the last 5 months when I had to shed the fat, at that time I was not necessarily building muscle because that would have been very difficult. So I was actually shedding the fat. Not really building the muscle, but maintaining the muscle. We didn't want to lose the muscle that I had built. We had to maintain the muscle and shed the fat. So in that 5 months period, a lot of people feel I shed fat and built muscle in the 5 months. No, I built muscle over 2.5 years. आमिर ने ये भी खुलासा किया कि कैसे वो खुद को अनहेल्थी खाने से रोकते हैं. So my first tactic is that when I'm tempted, tell yourself, if you're tempted to have that ice cream or that cake or that samosa, tell yourself, yeah, no problem, Amir, you're going to have it. Just give it 5 minutes. Abhi mat khao, 5 minutes ke baad khao. Just delay it by 5 minutes. You will be surprised in that 5 minutes, आपका बैलेंस संतुलन वापस आ जाता है. तूने अच्छा मैंने नहीं खाया, 5 मिनट में मेरे को अकल ठिकाने आ गई मेरी. The first step doesn't work. I tell myself, okay, I will have the samosa, but after a glass of water. तो फटाक से 1-2 गिलास पानी पी लेना. तो जब पानी जाता है ना पेट में तो लगता है कि भर गया यार पेट, अभी खाने का इतना मन नहीं कर रहा है. तो वाटर इज अ गुड extinguisher of the desire to suddenly eat something. If you really have to break your diet, eat something sensible. Have a fruit, eat something sensible. And if you're tempted for something non-sensible, कि यार मेरे सामने जो आइसक्रीम पड़ी है वो मुझे खाना है और अब सब टैक्टिक्स हो गया और मुझे खाना ही पड़ेगा, तो फिर क्वांटिटी comes in play. आमिर ने एक मजेदार किस्से का खुलासा करते हुए ये भी बताया कि एक बार कैसे शाहरुख खान के घर पर हुई पार्टी के दौरान वो खुद का टिफिन लेकर पहुंचे थे. घर पे वो आए थे, टिम कुक है उनका नाम, मुझे ठीक से याद नहीं रहता, एप्पल के हैं. हाँ, वो आए थे उनके घर पे, उनके टीम से और भी 4-5 लोग अमेरिका से आए थे और शाहरुख साहब ने हम लोगों को बुलाया था खाने. तो पार्टी थी, हम लोग आए थे. तो गौरी ने कहा खाना खा के जाइएगा. मैं बोला हाँ मैं खाना खा के जाऊँगा. सिर्फ खाना लग गया ऐसे नहीं, वो मेरा टिफिन साथ में लाया. अरे यार तुम हमारे घर पे आके खा. नहीं वो आप कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, मैं अपना डाइट फॉलो कर रहा हूँ. ये दंगल के टाइम पे, दिस वाज ड्यूरिंग दंगल. ऐसे यार मेरी फिल्म के लिए आई हैव टू लूज द वेट, मैं अपना टिफिन लाया हूँ, मैं टिफिन खाऊंगा. तो खैर फाइनली आई सेड कि यार आई टोल्ड आमोस, मेरा जो लड़का है, बोला यार मेरा खाना ले. तो वो थाली लाया और थाली में वो राइस था और सब्जी थी और दाल था, ये था. तो मैंने वो सब अपने थाली में जमाया और मैंने खाना शुरू किया. अच्छा मैं खा रहा था, फिर मैंने ऊपर देखा, मैं बोला सब मतलब 15-20 लोग मेरे को देख रहे हैं. पर क्या हुआ? बोला ये तेरा डाइट है कि क्या है? तू इसमें वेट लॉस कर रहा है या वेट गेन कर रहा है? मैं बोला नहीं मैं वेट लॉस कर रहा हूँ. They couldn't believe a doctor because the quantity was obviously a good amount of quantity and they could not believe that I'm having that
मतलब मैं वेट लॉस कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपना टिफिन लेके जाता हूँ, क्योंकि वो क्या है, इसमें हम लोग को शर्म नहीं करनी चाहिए। अपना काम है, अपने को कम करना है वेट, अपना टिफिन लेके जाना चाहिए। वेल, आमिर के इन खुलासों ने सभी को हैरान कर दिया है। फॉर संदेश डे, ज़ूम, मुंबई। एक्टर प्रोड्यूसर सलमान खान ने वेडनेसडे नाइट को होस्ट की अपनी लेटेस्ट प्रोडक्शन नोटबुक की स्पेशल स्क्रीनिंग फॉर हिज नियर एंड डियर वंस। और स्पेशल स्क्रीनिंग में न्यू कमर्स प्रनूतन बहल और जहीर इकबाल को सपोर्ट करने पहुंचे सलमान के फैमिली मेंबर्स के साथ ही प्रनूतन के डैडी मोनीश बहल, सोनाक्षी सिन्हा और बॉबी देओल जैसे कई और स्टार्स। फैशन डिजाइनर पायल सिंघल ने रिसेंटली अनवील की अपनी लेटेस्ट कलेक्शन, जहां नजर आई कैटरीना कैफ की सिस्टर इजाबेल कैफ, जो जल्द ही रेमो डिसूजा की फिल्म टाइम टू डांस से करने वाली है अपना बिग स्क्रीन डेब्यू। वहीं एक्टर विद्युत जामवाल को शटरबग्स ने किया कैप्चर आफ्टर द स्क्रीनिंग ऑफ जंगली। जंगली पिक्चर्स की इस एक्शन एडवेंचर फिल्म को हॉलीवुड डायरेक्टर चक रसल ने डायरेक्ट किया है और ये फिल्म इस वीक होने वाली है रिलीज। फिल्म मेकर और एक्ट्रेस नंदिता दास जल्द ही नजर आएंगी इन द रीमेक ऑफ द 1980 कल्ट फिल्म एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है। और वेडनेसडे को नंदिता इस फिल्म में अपने को स्टार मानव कौल के साथ इस फिल्म के प्रमोशंस में रही बिजी। द मॉडर्न टेक ऑफ एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है is set to release on April 12th, which explores the theme of personal and social struggle in today's times. क्या अजय देवगन के साथ जानवी करने जा रही है फिल्म? क्या बोनी कपूर ने अपनी अपकमिंग फिल्म में अजय देवगन के साथ जानवी कपूर को भी किया है साइन? After making her dream debut with धड़क, जानवी ने ऑलरेडी बॉलीवुड में कर ली है एक सक्सेसफुल एंट्री। जानवी नेक्स्ट नजर आने वाली है इन मल्टी स्टारर फिल्म तख्त, डायरेक्टेड बाय करण जौहर, जहां वो नजर आएंगी अलोंग द लाइक्स ऑफ रणवीर सिंह, अनिल कपूर, करीना कपूर एंड आलिया। तख्त के बाद जानवी गुंजन सक्सेना की बायोपिक में नजर आएंगी, जो इंडिया की फर्स्ट फीमेल IAF पायलट की स्टोरी पर बेस्ड होगी। वहीं जानवी के डैड बोनी कपूर ने रिसेंटली अजय देवगन और साउथ स्टार कीर्ति सुरेश को लेकर एक फिल्म की अनाउंसमेंट की है। सोर्सेज की माने तो बोनी इस फिल्म में डॉटर जानवी कपूर को भी साइन करना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि अगर सब सही रहा तो जानवी डैड बोनी की फिल्म में कैमियो करती नजर आ सकती हैं। This is Bonnie Kapoor's first production since Janvi made her Bollywood debut and apparently he wants her also to be a part of it. Well, Janvi के फैंस उन्हें नए अवतार में देखने के लिए एक्साइटेड है। For संदेश डे, Zoom, मुंबई। आलिया और रणबीर के रिलेशनशिप से मॉम सोनी राजदान को नहीं है कोई भी प्रॉब्लम। क्या सोनी राजदान ने रणबीर को दे दिया है अपना अप्रूवल? It wouldn't be wrong to say that actress Alia Bhatt is having a good time, both personally as well as professionally. जहां आलिया ऑन स्क्रीन अपनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस से अपने फैंस और फॉलोअर्स का दिल जीत रही हैं, वहीं अपने कैरेक्टर्स की वजह से फिल्म इंडस्ट्री में ग्रेट हाइट्स भी टच कर रही हैं। और रिसेंटली एक एंटरटेनमेंट पोर्टल से बात करते हुए जहां आलिया की मॉम सोनी राजदान ने आलिया की सक्सेस पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें आलिया पर बहुत गर्व है। वहीं जब इस दौरान सोनी से आलिया और रणबीर के रिलेशनशिप के बारे में बात की गई, तो उन्होंने कहा कि आलिया ने अब तक जिसे भी डेट किया है या फ्यूचर में जिसे भी डेट करेंगी, वो आलिया के हर डिसीजन में उन्हें सपोर्ट करेंगी। और एज अ मॉम शी डजंट फाइंड इट राइट टू डिस्कस हर पर्सनल लाइफ इन पब्लिक। एंड व्हाइल फिनिशिंग हर स्टेटमेंट, सोनी सेड, As a mom, I'm just happy if she is happy. फिलहाल आलिया अपनी फिल्म गली बॉय की सक्सेस एंजॉय कर रही हैं और जल्द ही वो मल्टी स्टारर फिल्म कलंक में नजर आएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। क्या फिल्म मेकर लव रंजन की अगली फिल्म है एक एक्शन थ्रिलर?
क्या इस फिल्म में नहीं दिखेगा रणबीर कपूर और अजय देवगन का ब्रोमांस? फिल्म मेकर लव रंजन, जो प्यार का पंचनामा फ्रेंचाइज और सोनू के टीटू की स्वीटी जैसी रोम कॉम फिल्म्स के लिए मशहूर है, उनकी फिल्म में रणबीर कपूर और अजय देवगन एक साथ नजर आएंगे। जहां इस फिल्म में रणबीर और अजय के कोलैबोरेशन की न्यूज सामने आने के बाद इन दोनों स्टार्स के फैंस एक और जबरदस्त रोम कॉम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वहीं अब सुनने में आया है कि लव इस बार अजय और रणबीर के साथ कॉमेडी की जगह एक्शन करवाएंगे। रिपोर्टेडली ये अनटाइटल्ड फिल्म एक आउट एंड आउट एक्शन थ्रिलर होगी, जिसमें रणबीर अजय के साथ परफॉर्म करेंगे कुछ स्टाइलिश स्टंट्स। खबर तो ये भी है कि जल्द ही लव इस फिल्म के लिए अजय और रणबीर के लिए एक एक्शन वर्कशॉप भी अरेंज करेंगे। ऑन स्क्रीन अजय के एक्शन स्टंट्स तो उनके फैंस को काफी पसंद आते हैं, पर रणबीर उनके स्टाइल को कहां तक मैच कर पाते हैं, ये देखना होगा काफी इंटरेस्टिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। जानते हैं कि एक्टर टाइगर श्रॉफ ऋतिक रोशन को करते हैं एडमायर, और रिसेंटली टाइगर ने अपने आइडल ऋतिक के लिए एक पॉपुलर सॉन्ग पर किया डांस। वरुण धवन और अर्जुन कपूर ने कुछ समय पहले ये रिवील किया था that they both had started a club called We Hate Katrina Kaif and chose to remain its members for a long time। लेकिन अब वरुण और अर्जुन ने कटरीना कैफ के साथ अपनी फेथफुल फ्रेंडशिप को देखते हुए कटरीना को एक ट्रॉफी से ऑनर किया और स्टार्ट किया एक नया फैन क्लब, और इस न्यूज को दोनों ने अपने सोशल मीडिया पर अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के साथ किया अनाउंस। हाल ही में एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस और मनीष पॉल के बीच हुआ एक पूल मैच, और इस मैच को दोनों ने किस तरह एंजॉय किया आप भी देखिए। वहीं सुशांत सिंह राजपूत ने भी अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर किए अपने नाइट आउट ट्रिप के ग्लिम्पसेस, जबकि रितेश देशमुख ने अपनी वाइफ और एक्ट्रेस जेनेलिया के साथ एक रोमांटिक राइड एंजॉय करते हुए पोस्ट की ये वीडियो। हाल ही में सिंगर मीका सिंह ने सवी सिद्धू की स्ट्रगल स्टोरी देखने के बाद उन तक पहुंचने और उनकी हेल्प करने की इच्छा जाहिर की थी, और फाइनली मीका की ये विश पूरी भी हो गई। ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈਂਡਸਮ ਮੈਨ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਭਾਈ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ स्ट्रांग रहना, बी स्ट्रांग। आपको बता दें कि एक YouTube चैनल पर अपनी स्ट्रगल की स्टोरी शेयर करते हुए सवी ने बताया था what led him to take up a security guard's job, जिसके बाद राजकुमार राव, मीका सिंह और अनुराग कश्यप उनके सपोर्ट में आगे आए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। Yo, what's up? This is Hardcore and you're watching me on Be Your Star. If you want to learn how to dress like me, the street style, the real style, watch me right now. I started dressing like this probably when I discovered hip-hop, which was around 1993. At school, you know, I don't make hip-hop. I am hip-hop, which means you have to live it. You have to behave like that, dress like that. It's a whole lifestyle. And what you wear is a big part of hip-hop. Right now, if you look at my bandana, a lot of people might say, hey, Tupac, you know what I'm saying? Nah, bro, in our days, everybody wore a bandana. There was different ways of wearing a bandana. There was sometimes when, you know, you wear it from here, full on open, and you tie at the back. Sometimes you do it at the front. Sometimes you wear it under a hat, what you're all doing right now anyway, right? So the bandana is probably the most hip-hop thing I can think of. So what I'm wearing right now is a big ass top. Even this Mumbai, I still wear hoodies and I still wear tops like that. You know what I'm saying? Number two, joggers are a big part of hip-hop. Because, again, comfort and also, you know, you gotta walk like a bad man in it, so looks cool. Right now, I got some Versace shoes on.
Back then, it was all about joggers, being comfortable, trainers. Trainers was such a big thing on us. Like, Americans might say sneakers, but trainers, shoes. It was all about shoes. You don't have to worry about designer wear. I know they went to designer wear, but it's cool. If you can afford it, it's fine. But if you can't, you can still wear cool shoes. Yo, what up? I'm back with my second look. Well, you know I love hoodies. Mumbai ho ya London, I love hoodies. Number 2, denim jackets. Everybody has to have a denim jacket. Army print. Everybody loves the army print, hip hop or not. But it's very hip hop, right? Because you got different types of army prints. So you got the green one, you got like the blue ones, the red ones, and they put in different colors out now. You got the yellow ones as well for Yellow Wolf. Fashion shouldn't be about what's being thrown at you and what the magazines expect you to wear. You can be fat, skinny, dark, tall, person, whatever. It doesn't matter. Don't listen to these people about the way you should dress or what's the color of your skin or what's your gender. You can't listen to people. You do whatever you want to do. You wear whatever you want to wear. Because what is hip-hop? Hip-hop is about being yourself. You wear what you want, you do what you want, you say what you want. Baki dunya, bleep. I don't want to swear right now, but you know how I mean. All right, cool. This is my last look, yo. I'm always in this look. Why is that? Because it's my most comfortable. A, loose joggers, colorful joggers, and it makes a statement, you know, at the same time. If you're going to a party, like, even if I do red carpet now, I don't even bother, like, you know, wearing dresses or whatever, right? But if you're gonna do a glam version of hip-hop, just add some pop of colors and things like that. Obviously vests, because it's India, it's pretty hot. And it shows your tattoos very nicely, you know what I'm saying? Then the backpack. Now the backpack has become a very big fashion. For me, it's a physical thing. I have to carry my laptop, I have to carry all my hard drives, I have to carry all the wires. Basically, hardware ki dukaan hu main. Yeah, backpacks, that's a big part of hip-hop, right? Anyone who's watching me going, is bag mein lagta kuch hai nahi. Main bol rahi hu, kuch hai nahi. Coming up on the show, क्या टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के मेकर्स ढूंढ रहे हैं नई दयाबेन? नीति टेलर हुई शॉक्ड। नीति अपने एक फैन के सुसाइड की न्यूज सुनकर हो गई इमोशनल और नीति ने ले लिया एक बड़ा फैसला। नीति ने डिसाइड किया है कि वो अपने फैंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगी। नीति ने अपने सोशल हैंडल पर अपने फैंस के लिए एक मैसेज लिखा और कहा कि अगर उन्हें किसी भी तरह का इशू है तो नीति को डायरेक्ट मैसेज करें या कॉल करें, ना कि खुद को डिप्रेशन में डालें। वेल, नीति का ये स्टेप काफी अच्छा है एंड वी होप इससे उनके फैंस को हेल्प मिलेगी। हाल ही में ऐसी न्यूज आई थी कि प्रोड्यूसर असित मोदी ने सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा की दयाबेन यानी टीवी स्टार दिशा वकानी को शो में वापसी के लिए 30 दिन का अल्टीमेटम दिया है। मगर लगता है कि अब दयाबेन के कैरेक्टर के लिए दिशा वापस नहीं आने वाली, बल्कि अब तो असित इनका रिप्लेसमेंट देख रहे हैं। तभी तो असित मोदी ने एक स्टेटमेंट में कहा है कि शो मस्ट गो ऑन और वो दिशा का रिप्लेसमेंट देख रहे हैं। We have been cooperative from the beginning. Since her daughter's birth, we have been waiting patiently, giving her space as new mother. But eventually, a show has to go on. Nobody can wait indefinitely. Character of Daya has to come back in Gokul Dham society. If Disha is unable to come back because of her personal issues, then we will be left with no option but to replace her. However, show must go on with all the principal characters. It's time she took a decision and informed us. वहीं शो के प्रोड्यूसर असित मोदी ने साफ किया कि शो में दयाबेन के भाई का किरदार निभा रहे एक्ट्रेस दिशा वकानी के रियल ब्रदर मयूर वकानी
इस शो से जुड़े रहेंगे। गौरतलब है कि ऐसे रूमर्स आ रहे थे कि दिशा के बाद अब मयूर भी शो को टाटा बाय बाय कह देंगे। हालांकि खुद मयूर ने जूम से बातचीत में शो में बने रहने की बात की है।